अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, इनपुट डिवाइसेस। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर यूनिट नंबर 2 से। इनपुट डिवाइसेस हैं। A computer is a data processing system that converts the input data into the output information. A computer must be able to accept the data. Input devices are the hardware devices used to supply the data to the computer. The selection of the devices depend on the applications for which the computer is being used. So basically, the input devices are used to insert the data into the computer. All type of the inputs data can be inserted into the computer by the use of input devices. There are many types of input devices in the computer that can be attached. The first one, the most common input device is the keyboard, and the other input devices are like mouse, joysticks, mouse pad. These are the different types of input devices that can be attached to the computer. Okay, student, let's start discussing the input devices one by one. First of all, we will discuss the keyboard. The keyboard is most common input device and the most important input device. It is used to insert the data into the computer in the form of text or in the form of number. So if you want to enter the data manually, you can use the keyboard. A keyboard normally has 104 keys. There are different types of keys on the keyboard. The first one is the alphabetic keys. That is mentioned with the alphabets like A, B, C, D, E, F, G, etc. Then we have a numeric keypad on the right side of the keyboard on which the numbers are mentioned 0, 1, 2, 3, 4. And then we have a special keys on the keyboard like control, shift, caps lock, tab, escapes. So these are the special keys and they are used only for the special function, and that's caps lock is used to enter uh, the capital alphabets, just like control key is used for selection. And other than these keys, we have function keys starting from F1 to F12, and these function keys are also used to perform a special function. For example, F2 key is used to rename the file, etc. And we may basically use our Braille keyboards uh, are embossed with the Braille characters to help the visually impaired peoples. अगर कोई ऐसे पीपल्स हैं जिनको आंखें जिनकी आंखें सही नहीं है या बहुत देख सही नहीं सकते, तो उनके लिए हम ब्रेली कीबोर्ड यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें हम करेक्टर्स को एम्बोज कर देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक आप अगर आप करेक्टर एफ के ऊपर प्रेस करें तो आपको एक हल्की सी है लाइन नज़र आएगी जिस जो इंडिकेट करती है कि ये करेक्टर एफ है। इसी तरह आप अगर करेक्टर एच के ऊपर फिंगर को सॉरी करेक्टर जे के ऊपर फिंगर को मूव करें, सेम एक छोटी सी लाइन उसके ऊपर भी लगी हुई है। ठीक है, जिसको जिसको एम्बोज लाइन इसके ऊपर लगी हुई है, जिसकी वजह से हम हमें इंडिकेशन हो सकती है कि ये हमारा करेक्टर जे है और जो दूसरा वाला था वो हमारा करेक्टर जी है। ठीक है, इसी तरह अगर आप न्यूमेरिक पैड में देखें तो आपके ऊपर 5 वाला जो करेक्टर है उसको थोड़ा सा इम्पोज किया जाता है ताकि जो विजुअली इम्पेयर्ड पीपल हैं उनको समझ आ जाए कि ये हमारे पास नंबर 5 है। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। ये तो कीबोर्ड तो ऐसी डिवाइस है जिसमें हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर और इन द फॉर्म ऑफ नंबर। लेकिन जो नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस अलाउज यूजर टू इंडिकेट द फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन।
पॉइंटिंग डिवाइस के ज़रिए हम स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर है, ये जो आपको कर्सर ये नज़र आ रहा होगा एक क्रॉस का साइन, ठीक है, इसको हम मूव कर सकते हैं with the help of pointing device. So let's discuss the pointing device. The first pointing device is a mouse. Okay, the electronic mouse is used to point out the object on the screen and it gives the command. A mechanical mouse has 2 or 3 buttons and a scroll wheel on the top. It has a ball underneath and is attached by a cord to this system unit, and it is moved across a smooth surface. The ball rotates and moves the pointer. आजकल जो हमारे पास माउस यूज़ हो रहे हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक माउस है, ठीक है, उसमें हम लेज़र लाइट यूज़ करते हैं ताकि फॉर द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। इससे पहले हमारे पास मैकेनिकल माउस यूज़ होते थे जिसके अंदर एक बॉल होती थी, ठीक है, उस बॉल के ज़रिए से हमारा जो माउस है वो लेफ़्ट राइट की तरफ मूव होता था। माउस के ऊपर बेसिकली 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट राइट बटन होता है और एक लेफ़्ट बटन होता है, ठीक है। जो लेफ़्ट बटन होता है वो आपको बेसिकली सिलेक्शन के लिए होता है। अगर आपने किसी भी फ़ोल्डर के ऊपर फाइल के ऊपर डबल क्लिक किया तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। और जो राइट बटन होता है उसके ज़रिए हम मेन्यू ऑप्शन ओपन कर लेते हैं। अगर आप किसी भी फाइल के ऊपर मेन्यू ऑप्शन ओपन करना चाहते हैं, लेट्स सपोज उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके ऊपर क्या होगा फिर, जैसे अगर हम यहाँ पे विंडो के ऊपर क्लिक करें तो एक मेन्यू ओपन हो रहा है, ठीक है। इस तरह हम माउस के ज़रिए अगर किसी भी फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह हमारे पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा और उसमें से हम कोई भी एक्शन सेलेक्ट करके अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। देन वी हैव एन ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस में हमारे पास कोई भी रोटेटिंग बॉल नहीं होती क्योंकि उसमें हम लेज़र लाइट यूज़ कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ ball for the movement of the cursor. It puts less pressure on the palm and is more precise in positioning the pointer to the screen. ठीक है। A cordless mouse does not need a cord. It emits wireless signal to the communicate with the computer. The signal travel to the computer through the air. इसके अलावा हमारे पास एक cordless mouse होता है। cordless mouse का क्या मतलब है कि हमारे पास उसके लिए हमारे पास कोई भी वायर यूज़ नहीं होती। उसमें हमारे पास क्या होता है, एक ब्लूटूथ रीडर होता है जो हम अपने सिस्टम के साथ अटैच कर देते हैं और आप अपने माउस को किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं थोड़े से डिस्टेंस में। जैसे आपके पास फिगर 2.1 में एक कॉर्डलेस माउस की एग्जांपल है। इसमें आपको एक यूएसबी डिवाइस की तरह छोटी सी डिवाइस नज़र आ रही होगी। ये डिवाइस हम अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं और फिर हम अपने माउस को मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पे। ओके, then we have a next input device is the touchpad. टचपैड आपके पास इनपुट ऐसी इनपुट डिवाइस है जैसे अगर आप लैपटॉप यूज़ करें तो लैपटॉप पे आपको माउस अवेलेबल, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसमें तो आप एक्स्ट्रा माउस यूज़ करते हैं, लेकिन जो लैपटॉप हमारे पास होता है उसके ऊपर कीबोर्ड के साथ ही हमें एक माउस पैड गिवन होता है, ठीक है, उसको हम टच पैड कहते हैं। A touchpad is a small flat surface with button around the edge. Moving a stylus with a finger across a pad moves the cursor. The button works like the mouse button. The touchpad are mostly used in the laptops. ठीक है, तो टच पैड बेसिकली यूज़ कहाँ पे होते हैं, लैपटॉप्स में यूज़ होते हैं और इसमें भी आपके पास 2 बटन होते हैं। इनमें से एक बटन एज ए राइट क्लिक काम करता है और एक जो लेफ्ट साइड पे बटन है वो एज अ लेफ्ट क्लिक के लिए काम करता है। इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपके पास मोस्ट कॉमन है आजकल इनपुट डिवाइस है जो आप अपने स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दोनों चीज़ें होती हैं, इसमें हम इनपुट भी कर सकते हैं और उसी स्क्रीन के ऊपर आप आउटपुट स्क्रीन भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है, आप उसी स्क्रीन के ऊपर अगर किसी फाइल के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर फिंगर प्रेस करेंगे तो आपकी वही फाइल उसी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये बोथ डिवाइस है, इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। ओके, इसमें आपके पास बेसिकली यूज़ क्या होता है, इसमें आपके पास सेंसिटिव स्क्रीन कवर्ड विद अ प्लास्टिक ग्लास लेयर
यूजर सेलेक्ट एंड इंटर द डेटा बाय टचिंग पॉइंट ऑन द स्क्रीन। इसके साथ साथ आपके पास नेक्स्ट है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपके पास क्या होता है? जॉयस्टिक कंसिस्ट ऑफ द वर्टिकल लेयर माउंटेड ऑन द बेस, मूविंग द lever in different direction, move the cursor. Joysticks are used in game flight simulation programs or to control the robots। ठीक है, joystick कहाँ यूज होती है? गेम में यूज होती है फॉर द मूवमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स। इसके अलावा फ्लाइट सिमुलेशन में यूज होती है, जैसे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं। इसके अलावा डिफरेंट एरोप्लेन्स वगैरह, उनमें हम उनको कंट्रोल करने के लिए हम जॉयस्टिक्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा रोबोट्स को भी यूज़ करने के लिए हम कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइस है वो लाइट पेन है। A light pen looks like a normal pen connected to a computer. It is used to select item on the screen, and it can be moved by the hand over a pad to enter the drawing into the कंप्यूटर है। जो है लाइट पेन जो है आपके पास बेसिकली एक पेन की तरह होता है, उसके साथ आपको एक पैड दिया जाता है जिसके ऊपर आप राइटिंग करेंगे कोई भी, तो वो स्क्रीन के ऊपर आपकी राइटिंग वही शो होगी और वही डेटा आपका कंप्यूटर में इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप उसकी मदद से कंप्यूटर के ऊपर कोई भी चीज़ अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो आप लाइट पेन की मदद से उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नया डिजिटाइजिंग एंड स्कैनिंग द डिवाइसेस। Digitizing devices convert manually produced data into a digital form which can be stored and manipulated on the computer। उसके बाद जो आपके पास डिजिटाइजिंग डिवाइस है वो क्या करती हैं, आपके जो मैनुअल डेटा उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू अ डिजिटल फॉर्म जो कंप्यूटर में मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। The graphic tablets is the board covered by the touch sensitive membrane. A stylus is the pointer with while a puck is a mouse-like device. The stylus and the pucks are used to draw directly on the tablet. Graphic tablets are used to make the maps and drawings। ये भी आपके पास मोस्ट कॉमन डिवाइस है टैबलेट जो आप घरों में यूज करते हैं। स्कैनिंग डिवाइस आर द इनपुट डिवाइसेस दैट स्टोर द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ images when they are run across the surface of the data। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी डिवाइस है वो ऑप्टिकल स्कैनर है। एन ऑप्टिकल स्कैनर कन्वर्ट्स अ प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट डायग्राम एंड द फोटोग्राफ्स इनटू द डिजिटल form and transfer them directly to the computer। The digital image can be displayed on the monitor, modified, printed, and stored for the later use। A portable scanner is the handheld device. It is dragged carefully over the image to scan it and convert it to the digital form। A flatbed scanner is a larger. It consists of the glass pane and the cover। तो स्कैनर क्या करते हैं, बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स या डायग्राम्स या फोटोग्राफ्स जो भी हैं उनको स्कैन करके कंप्यूटर में इंसर्ट कर देते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं टू अ डिजिटल इमेज। ठीक है, ताकि हम उनको मॉडिफाई कर सकें, प्रिंट कर सकें और अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकें, ताकि हम उनको लेटर किसी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। स्कैनर बेसिकली फ़ोटोकॉपी मशीन के लिए तरह ही होता है, लेकिन फ़ोटोकॉपी मशीन में आपके पास क्या होता है, जब आप फ़ोटोकॉपी करते हैं तो साथ ही आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है उसी डॉक्यूमेंट की, लेकिन स्कैनर में हमें कंप्यूटर के अंदर एज ए सॉफ्ट कॉपी मिलती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर। पोर्टेबल स्कैनर आपके पास हैंड हेल्ड डिवाइस है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को आपने स्कैन करना है तो उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर हम इसको ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली जिस चीज़ को आप ड्रैग करते जाएंगे वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इज फ्लैटबेड स्कैनर। Flatbed scanner is a larger, it consists of a glass pane and a cover। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक ग्लास पेन होता है जिसके ऊपर एक कवर होता है, जिसको उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट करके कवर ऊपर से कवर कर देते हैं और फिर आपको जो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट है वो आपके सिस्टम में एज ए सॉफ्ट कॉपी इंसर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो आपने वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है इस पूरे टॉपिक में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।